Dear students, today we are going to discuss a very important topic that is known as translation. And we all know that what is translation? Translation means that is formation of RNA from DNA is known as transcription, and from RNA formation of proteins is known as translation. So that means you can say that we are going to study about this process, that means formation of proteins from the RNA. So you can say that translation is the mechanism by which the triploid base sequences of an messenger RNA helps us or guides us the linking of specific sequence of amino acid to form a polypeptide on ribosome. This is the simplest thing. We all know that translation means process of polymerization of amino acids. We have studied in previous lectures that what is the function of RNAs and DNAs and how they work or coordinate the process of protein synthesis. तो हम सभी को पता है कि अमीनो एसिड्स बनाने होते हैं एंड दीज अमीनो एसिड्स विल फॉर्म द प्रोटीन. तो दिस पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ टू मेक, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ मैसेजेस चाहिए एंड हु विल प्रोवाइड द मैसेजेस, आरएनए विल प्रोवाइड द मैसेजेस थ्रू डीएनए. तो द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट मीन्स ये किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जो सा भी इनका सीक्वेंस है, सपोज ये 1 2 3 वॉट एवर द सीक्वेंस इज of amino acids, these are the amino acids are governed by, or you can say are regulated by the sequence of bases in the messenger RNA. जो सा ये messenger RNA यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सीक्वेंस लगा है यही डिसाइड करेगा, बिकॉज ये तीन तीन के आपने पढ़े हुए हैं कि कोडॉन्स हैं, तो दे फॉर्म वन अमाइनो एसिड देन अनदर. तो दिस इज द सीक्वेंस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. ये थ्री जो हैं वो लेते जाएंगे एंड नाउ दिस बिकम अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस विल फॉर्म अ प्रोटीन. तो दैट मीन्स कि व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दैट पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन and the order and sequence of these polypeptide chain which forms the amino acids is defined by the sequence of bases which are present in the messenger RNA, and these amino acids are bound or you can say joined by the bond which is known as peptide bond. आप सब proteins पढ़ते हैं chemistry में, तो this is the peptide bond, this is the peptide bond if it is amino acid. ये एक amino acid है, ये 2 ये 3 and they are linked to the पेप्टाइड बॉन्ड. आप सबको पता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी, एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी. तो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन नीड्स एनर्जी एंड दैट्स वाई the first process in the protein synthesis is the activation process because it needs lots of energy. तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए. उसके थ्रू ये इसको चार्ज करता है. तो दैट इज इट अबाउट द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ protein synthesis initially starts. And we all know that this process, that means the peptide bond formation, is because an energetic process. It also needs a catalyst to enhance the rate of peptide bond formation. तो later अभी थोड़ी देर में हम ये भी देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स या क्या लगते हैं. तो एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट भी हमें चाहिए होता है, एंड राइबोसोम भी चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस यू कैन से थिंग्स विच आर गोइंग टू which we are going to utilize in the process of protein synthesis. So all the proteins a cell needs are synthesized by cell within itself. तो जो कुछ भी चाहिए होगा, जो भी प्रोटीन चाहिए होते हैं सेल्स को, वो सेल्स खुद ही सिंथेसाइज करते हैं अपने अंदर. तो क्या मटेरियल चाहिए होता है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड मटेरियल. व्हाट आर द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. सो प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स few things like it requires amino acids, it requires DNA, it requires RNA, it requires ribosome, it requires energy. All these things are required for the protein synthesis. So first we will take one by one, and in brief I am going to tell you about each and everything. So first we are going to take like amino acid. The first thing requirement is amino acids. ये चाहिए होता है amino acids. तो अमाइनो एसिड्स आर द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड से. तो दिस इज द रॉ मटेरियल, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एंड ऑल द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अमीनो एसिड्स कहाँ होते हैं, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस. तो अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं. द प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स अबाउट
20 अमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमें 20 अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह का प्रोटीन अपनी बॉडी में बनाने के लिए, एंड वी विल गेट इट फ्रॉम this pool, amino acid pool, which is present into the cytoplasm. Then come to the another important, or you can say most important thing, that is DNA. So a cell, in order to maintain its own special characteristics, must make protein exactly similar to present in it. सो डीएनए कंट्रोल्स स्पेसिफिसिटी थ्रू मैसेंजर आरएनए। अब आपने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो अगर ये प्रोटीन बनेगा और जो भी कैटलाइज करेगा रिएक्शन, तो डीएनए को चाहिए होता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएँ इस प्रोटीन सिंथेसिस में, और ये जो भी आगे मेटाबॉलिक रिएक्शन को गवर्न करेगा। तो वैसे ही मैसेजेस कौन पास ऑन करता है? डीएनए आरएनए को पास ऑन करता है। दैट मीन्स कि डीएनए विल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्पेसिफिसिटी को बनाए रखता है कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स डीएनए में थे वो आएँ, प्रोटीन तक आएँ, सो दैट ये जो फंक्शन है आगे बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उनको लीड कर पाएँ। तो डीएनए, यू कैन से डीएनए गिव्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच गिवन नंबर एंड काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड शुड बी लिंक्ड। दैट मीन्स डीएनए उसको एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उनको ये भी बताते हैं कि कितने अमाइनो एसिड्स इसमें लगने हैं और कौन से लगने हैं। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डीएनए, दैट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड काइंड ऑफ अमाइनो एसिड शुड बी लिंक्ड टू गेट द डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाना है वो तो डीएनए को ही पता है कि कौन सा वो चाहता है बनवाना, तो उसके लिए वो गाइडेंस भी कौन देगा? फिर डीएनए तो देगा अपने काम की कि मुझे कैसे चाहिए, कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, क्या करना है, कौन सा पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाएगा। तो 3 consecutive nitrogenous base in DNA helix form the genetic code, as we all have studied later on कि 3 कोड्स के फॉर्म में है वो, एंड ईच बेस ट्रिपलेट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये भी हमने पढ़ा था, ए यू 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 ए, ये सारे पढ़े थे हमने, एंड हमें पता था कि वो किस अमाइनो एसिड्स को पर्टिकुलरली बनाने वाले हैं। जब भी आप वो डायग्राम देखेंगे कोडॉन वाला, देन इट विल बी ईजी टू यू फॉर अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द आरएनएज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमें चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज आरएनएज। आरएनए मॉलिक्यूल वी ऑल नो दैट इज अ लॉन्ग अनब्रांच सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, और यू कैन से इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड दीज आर ऑफ 3 kinds: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एंड वी नीड ऑल दीज थिंग्स। ये सारे हमें चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए। ऑल द 3 आर यू गोइंग टू यूज इन this protein synthesis process. तो all type of RNAs are transcribed from different regions of DNA template. DNA से ही बनते हैं सारे RNA, आपको पता है। तो from different region of DNA you will get the these 3 kinds of messenger. That means वो DNA ही ये 3 तरह के messenger RNA बनाता है अलग अलग region से, and all 3 kinds of RNA play a role in protein synthesis. Very important role होता है इनका। तो मैसेंजर आरएनएस के बारे में वी हैव स्टडीड लेटर ऑन, ट्रांसफर आरएनए तो डिटेल हम सब पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट, about the structure of the RNA, although I have just clicked the picture of transfer RNA again here so that we can understand the process of translation easily. Now come to the another important thing, that is ribosomes. Ribosomes के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे help करते हैं, because ribosomes are known as the factory of protein synthesis. You have studied in your 9th standard also. So they are the site of protein synthesis, and chemically ribosomes are ribonucleoprotein. That is, they are made up of ribosomal RNA, that means rRNA plus proteins. इनसे मिलकर के राइबोसोम्स हमारे बने होते हैं। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs एंड अबाउट 80 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स ये चाहिए होते हैं। एंड इन इनएक्टिव स्टेज राइबोसोम का स्ट्रक्चर, यू नो ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, आप सब बच्चों को पता है। राइबोसोम इज लुक लाइक दैट, है ना, ऐसे दिखता है आपको राइबोसोम। तो व्हेन इट इज़ इनएक्टिव स्टेट तो ये सेपरेट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन 2 सब यूनिट्स। ये ऐसे पड़ा रहेगा, ये एक सब यूनिट ऐसे पड़ा रहेगा। एंड राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम, टू डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज देयर। तो सपोज अगर हम बात करते हैं तो दिस इज सेडिमेंटेशन 30S, एंड देन दिस इज 50S। तो 50S एंड 30S इट डिपेंड्स अपॉन द सेडिमेंटेशन कि किसके अकॉर्डिंग हम राइबोसोम्स को ब्रेक करते हैं यूनिट्स में, तो उनके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। 70S, सपोज 70S की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट ब्रेक इनटू 30S एज वेल एज 50S कॉम्पोनेंट्स। तो ये 2 कॉम्पोनेंट्स हो गए, एंड वी विल नॉट टेक इट एज कि इसको प्लस करेंगे 50 एंड 30 तो 80 बनना चाहिए।
है ना, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, या 70 बनना चाहिए, बिकॉज आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट दैट 70s। 70s को हमने ब्रेक किया है 30 एंड 50 में, तो 5 और 3 मिलके 50 एंड 30 मिलके 70 तो होगा नहीं, तो इसलिए आप उस तरह से नहीं करेंगे। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम ब्रेक करते हैं। तो अब नाउ कम टू द अनदर थिंग, दैट इज़ जो मैं आपको बता रही थी कि अबाउट द राइबोसोमल। तो इन इनएक्टिव स्टेज दे आर इन द सेपरेट फॉर्म। अगर ये इनएक्टिव स्टेज में है तो दे विल फाउंड लाइक दैट, ये अलग पड़ा हुआ होगा, ये अलग पड़ा होगा, दिस इज 30s, दिस इज 50s, तो ये सेपरेट पड़े रहते हैं। एंड वेन एवर द स्मॉलर सब यूनिट दैट मीन्स 30 सब यूनिट्स वेट इज, ये जब भी इनकाउंटर करती है मैसेंजर आरएनए, सपोज कोई मैसेंजर आरएनए एक मिल गया, जैसे ही मैसेंजर आरएनए इसको मिल जाएगा फटाफट से क्या होगा, ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनको पता भाई स्टार्ट हो जाओ, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है हमने, फटाफट आ जाओ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इसी के साथ में। और ये मैसेंजर आरएनए जो है ये बीच में इसके सैंडविच की तरह से बीच में ये जो है अटैच रहता है। तो और ये कब होगा, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट मीट्स द मैसेंजर आरएनए, जैसे ही उसे मिलेगा वैसे ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अब ये स्टार्ट हो गया, ये मैसेंजर आरएनए आ गया तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट, दैट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देर आर 2 साइड्स इन द लार्जर सब यूनिट्स, तो मैंने स्मॉलर सब यूनिट्स की बात की, उसका काम तो फिनिश हो गया। तो ये जो राइबोसोम्स हैं कि 2 यूनिट्स मैंने बताए हैं, एक बिग वन और एक स्मॉलर, दिस वन स्मॉलर वन एंड दिस वन बिग वन, एंड इट हैज़ 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स होते हैं, वन इज़ नोन एज ए साइट एंड अनदर इज़ नोन एज पी साइट। तो ये एक ए साइट हो जाता है और एक ये पी साइट होता है बड़े वाले में। ए साइट इज़ नोन एज एक्सेप्टर साइट और अमाइनो एसाइल साइट, यू कॉल्ड इज एक्सेप्टर साइट और अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो एसाइल साइट। और दूसरे वाले को हम कहते हैं, इस वाले को पेप्टाइडल साइट और डोनर साइट। तो पेप्टाइडल साइट एंड पी को पी से याद रखेंगे, पी से पेप्टाइडल और ए से एक्सेप्टर और अमाइनो एसाइल साइट, पी से पेप्टाइडल साइट और donor site. And sometimes you can also notice that many ribosome lines up on messenger RNA like that. Suppose this is the messenger RNA, तो they are line up during the process of protein synthesis। इस तरह से बहुत सारे messenger RNA, if I change the color, तो ऐसे messenger RNAs पर बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आप इसको ऐसे देखें स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस इज गोइंग ऑन इन द सेल, एंड सच एक्टिव ग्रुप ऑफ राइबोसोम इज नोन एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। पॉली मीन्स बहुत सारे, तो पॉलीसोम्स भी यू कैन कॉल देम एंड पॉलीराइबोसोम्स भी आप उनको कह सकते हो। और ये ओनली कब होता है, जब एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है सेल के अंदर, तो ये सारे ही राइबोसोम आ जाते हैं टू हेल्प करने के लिए उसको ना, टू हेल्प इट आउट की ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, तो उन स्टेप्स के अंदर हम पढ़ेंगे सो दैट इट विल बी ईजी। सो फर्स्ट स्टेप इज़ द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन of amino acids. We all know that this is suppose the cell and this is nucleus, तो सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे यहाँ पर पूल में पड़े रहते हैं, अमाइनो एसिड सब पड़े हुए हैं। तो ईच ऑफ द अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज इन इनएक्टिव फॉर्म, ये ऑल आर इनएक्टिव, अभी ये काम नहीं कर रहे, भी चुपचाप से पड़े हुए हैं। तो यू वांट टू एक्टिवेट देम सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस विल स्टार्ट। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव देम स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम, एंड दैट स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम is known as amino acyl synthetase, very important enzyme, so many times it has been asked in the examination। प्लस क्या देंगे आप इनको, प्लस देंगे आप इनको थोड़ी सी एनर्जी, दैट इज एटीपी। तो थोड़ी सी एनर्जी पकड़ाई, थोड़ा सा इनको एंजाइम दिया, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, और ये जो सो रहे थे सारे आपके अमाइनो एसिड्स, दे आर फुल्ली चार्ज, दे आर रेडी टू एक्शन, ये फटाफट से चार्ज हो जाएंगे और ये काम करने के लिए तैयार हो गए। तो अमाइनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज आर द स्पेसिफिक विद वेरियस अमाइनो एसिड। अभी अमाइनो एसाइल सिंथेटेज हर अमीनो एसिड्स के लिए एक अलग है। सपोज ये वाला अमाइनो एसाइड है तो इसके लिए दूसरा है, इसके लिए दूसरा है, मतलब एक ही सबके साथ नहीं लगेगा, ईच वन, मतलब सारे अपना अपना अलग से लेकर घूमते हैं अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, मतलब सबके पास अपना अपना एंजाइम होता है सेपरेट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, और यू कैन से एक्टिवेशन step, activation step, you can say activation of amino acids to transfer RNA, or attachment of, you can say, now change the heading, we can say that
attachment of activated amino acid to ट्रांसफ़र आरएनए। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टेप। अब हमने वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था सारे अमीनो एसिड्स को, तो अब अमीनो एसिड तो हो गए। अब आपको पता है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ अमीनो एसिड, ये सब एक्टिवेट कर दिया आपने एंजाइम दे करके। तो अब इनको कहाँ जाना है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है, एंड फॉर दैट पर्पज़ दे हैव टू रीच अप टू द राइबोसोम। किसी राइबोसोम के पास इनको जाना पड़ेगा, और राइबोसोम को जाने के लिए भी अपने आप तो ये जा नहीं सकते, दे डू नॉट गो बाय देयर सेल्फ, तो अपने आप ये नहीं जा सकते। तो उनको जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे जाने के लिए इनको अगेन कोई चाहिए, व्हीकल जैसे होता है ना, हम कहते हैं कोई व्हीकल चाहिए, तो उस व्हीकल के थ्रू ये जाएंगे। एंड व्हीकल कौन है? ट्रांसफ़र आरएनए है। ठीक है, इसका नाम ही ट्रांसफ़र आरएनए, इसका काम ही ये लेकर के जाना अमीनो एसिड्स को। तो द अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, जो कि अभी ऊपर बना, एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? अमीनो एसिड अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। वो सारे एक साथ आ जाते हैं ना, जो फर्स्ट स्टेप आपने पढ़ा था उसमें अमीनो एसिड था, प्लस एटीपी था जो इनएक्टिवेट थे, प्लस अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम था। तो ये सारे भी इकट्ठे रह रहे हैं, और इनको हम क्या बोल रहे हैं एक साथ? अमाइनो असाइल आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये थे। अब ये इनको जब भी ये कोलाइड करेंगे, इससे टकराएंगे जाके ट्रांसफ़र आरएनए से, तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ, जो 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो देयर आर 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। तो हर एक अमाइनो एसिड को ले जाने के लिए उसका अपना ट्रांसफ़र आरएनए, जैसे आप सबके पास अपनी अपनी एक्टिवा है, अपना अपना घर जाने के लिए, है ना, ईच वन हैज़ ए स्पेसिफिक व्हीकल। तो उसी तरह से तो अमीनो साइल एएमपी कॉम्प्लेक्स जो बना अभी, इट रिएक्ट्स विद ए स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए। तो सपोज इसने इसके साथ रिएक्शन किया, देन ट्रांसफ़र आरएनए फटाफट इसको क्या करेगा? लोड करेगा और लेकर के चल पड़ेगा राइबोसोम के पास। देन अमीनो एसिड इज ट्रांसफर टू दिस ट्रांसफर। अभी तो पूरा कॉम्प्लेक्स था, तो इसमें क्या होगा कि ये जो एटीपी है ये निकल जाएगा, अमीनो एसिड एसाइल सिंथेटेज एंजाइम ये भी रिमूव हो जाएगा, अमीनो एसिड को फ्री कर देगा, क्योंकि जाना इसको सब साथ में तो नहीं चल पड़ेंगे इसके, तो अमीनो एसिड को फ्री कर देगा। और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इज गिवन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच बाइंड्स द अमीनो एसिड्स, एंड ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। दैट मीन्स कौन? दोनों, एटीपी रिलीज हो गया अपना, खत्म हो गया जितना यूज़ करना था, एंड जो एंजाइम है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये दोनों रिलीज हो गए, लिबरेट कर दिए गए। ट्रांसफ़र आरएनए केवल अमीनो एसिड्स को लेकर के जाएगा, तो अमीनो एसिड इज ट्रांसफर टू ट्रांसफ़र आरएनए। अब ये अमीनो एसिड कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया इनके पास, एंड एंजाइम एंड एएमपी आर लिबरेटेड। एएमपी किसको कह रही हूँ? एटीपी का मोनोफॉस्फेट, ये तो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म है, एएमपी में बोल रही हूँ, यूज़ होने के बाद वो एएमपी में कन्वर्ट हो गया, तो वो हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स and little bit difficult also to understand you, that is called initiation of polypeptide चेन। पॉलीपेप्टाइड, अब जब आपके अमाइनो एसिड चार्ज हो गए, काम करने को तैयार हो गए, और उसको ट्रांसफ़र आरएनए लेकर भी आ गया, तो अब क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना स्टार्ट होगा, एंड मैसेंजर आरएनए हैज़ इट्स 5' एंड एन इनिशिएटर और स्टार्ट कोडॉन। मैसेंजर आरएनए, अब नाउ आई रिमूव द इंक, सपोज दिस इज़ द स्टेप। अब इस स्टेप को आपको समझना है। तो दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए, ये रेड कलर का जो दिया हुआ है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर जो पहला कोडॉन है होगा, जो भी यहाँ पर, दैट इज़ AUG। वो क्या होगा? AUG होगा, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटर कोडॉन। हमने पढ़ा था किसके केस में? कोडॉन में हमने जब हम पढ़ रहे थे, तो वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ कोडॉन्स दैट फर्स्ट जो इनिशिएशन कोडॉन करने वाले होते हैं वो AUG मिथ्योनिन होता है, या फिर वेलिन GUG होता है। तो मिथ्योनिन को हम सपोज कर लो ले रहे हैं, या वेलिन भी ले सकते हो, तो AUG या फिर GUG यहाँ पर होने चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एंड दैट गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। वो स्टार्ट करता है भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं, एंड पहला अमीनो एसिड जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन जो है अपना स्टार्टिंग कर देता है कोड होकर के हमेशा इन एनी काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन एनीवेयर इन द सेल सिस्टम। तो कहीं भी होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? मिथ्योनिन बनेगा या फिर वेलिन बनेगा, और वो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। अब होता है क्या स्टूडेंट्स कि दिस राइबोसोम जिसके बीच में ये अटैच है, ये दोनों के बीच में अटैच है ना इस तरह से, दिस इज़ द राइबोसोम का पार्ट ये, और ये मैसेंजर आरएनए, दिस इज़ द, ये अटैच है यहाँ पे। तो ये मूव करता जाता है, दैट मीन्स ये राइबोसोम स्टार्ट्स मूविंग ऑन द मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोम हैज़, एज आई टोल्ड यू, 2 साइड्स फॉर बाइंडिंग अमीनो एसिड। दिस इज़ one side and this is another side. If I show you with the another diagram, you can easily understand with this diagram. I have drawn it for here. So there are 2 sides. One is known as अमीनो एसाइल साइड और वन इज़ नोन एज पेप्टाइडल साइड। तो मैं दोनों अलग अलग दिखाए हैं, एंड P साइड और A साइड हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो द इनिशिएटिंग कोडॉन दैट इज मीन्स, और यू कैन से अमीनो एसिड मिथ्योनिन,
जो कि है दैट कैन बाइंड ओनली विद पी साइट। तो सबसे पहले जो मिथ्योनिन है वो सबसे पहले पी साइट पर आएगा और वो यहाँ पर बाइंड करेगा इसके साथ में। एंड जो अदर आएंगे अमाइनो एसिड्स वो पी पर नहीं आएंगे कभी भी, वो हमेशा ए पर आएंगे, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन। That means methionine is an exception. It only binds on the P site, whereas another or you can say coming amino acids, they all newly coming amino acids bind only on the A site with the transfer RNA. तो बाकी की अभी ट्रांसफर RNA लेकर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ऐसे करके बना रखा है दैट इज ट्रांसफर RNA मैंने बनाया हुआ है। तो अमाइनो एसिड अपने आप तो आएंगे नहीं, उनको लेकर कौन आएगा, उनको लेकर आने के लिए एक ट्रांसफर RNA है। अगर आप इसको मैं छोटा भी कर दूं कि आपको दिखे, तो ट्रांसफर आरएनए लेकर के आएगा। तो यहाँ पे तो मिथ्योनिन है, ये आकर के अपना अटैच हो गया पी साइड से। लेकिन अब अगले आने वाले देखो यहाँ से लेकर के आ रहा है प्रोलीन, दूसरे अमीनो एसिड्स को लेकर के आ रहा है ये। तो प्रोलीन आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है, ए साइट पर आ रहा है। तो पी साइट इज द साइट फ्रॉम वेयर एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए लीव्स एंड टू विच ग्रोइंग पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बिकम्स बाउंड। तो यहाँ पर आप देखोगे लेटर ऑन प्रोसेस क्या होता है कि सपोज अब नेक्स्ट ये तो अमीनो एसिड आ गया, फर्स्ट वाला मिथ्योनिन हो गया, दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है जो प्रोलीन के लिए, देखो लेकर के ये आ रहा है जी सी, ये ऐसे मैंने बनाया है ट्रांसफर आरएनए का रफ का स्ट्रक्चर, और ये ऐसे लेकर आ रहे हैं जी जी ए जो भी है। तो इट कम्स ओवर हेयर और यहाँ पर ये इसके साथ मैच करेंगे, सी सी यू जो लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए पर, यू कैन सी इट हेयर, सी सी यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसके साथ ये मैच करेंगे, अगर ये मैच हो जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच में पेप्टाइडल बॉन्ड बन जाता है। तो अब ये जो ट्रांसफर आरएनए लेकर के यहाँ पर आया है, तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी दैट प्रोलीन इज कमिंग ओवर हियर, कमिंग मतलब यहाँ पर ये आया प्रोलीन, ये दोनों के बीच में जो कोडॉन और एंटी कोडॉन थे दोनों मैच कर गए, तो एक बॉन्ड बन गया पॉलीपेप्टाइड का। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल हैपन दैट यू कैन सी दैट एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए इज मूविंग, ये एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए जा रहा है, इसने अपना मिथ्योनिन किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया प्रोलीन को। तो दैट मीन्स ये जो नया आने वाला ट्रांसफर आरएनए था इसके पास अभी दोनों ही हैं, प्रोलीन भी हैं और मिथ्योनिन भी हैं, और ये यहाँ से एम्प्टी हो गया क्योंकि इसने अपना दे दिया, तो ये बाहर निकल गया छोड़ के इसको। एंड देन व्हाट हैपन व्हेन न्यू ट्रांसफर आरएनए एंटर्स, तो ये जो पूरा का पूरा है ये जम करके किधर आ जाता है, पी पर आ जाता है। दैट मीन्स प्रोलीन प्लस मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स दोनों अटैच हैं, वो यहाँ पर आ गए, और न्यूली अराइविंग जो ट्रांसफर आरएनए है वो लेकर आ रहा है अर्जिनिन को। तो अर्जिनिन को यहाँ लेकर आया, उसके जो कोडॉन्स थे उन्होंने रीड किए, एंटी कोडॉन्स के साथ मैच हो गए, तो यहाँ पर एक और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन सेम उसी तरीके से होगा कि ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है, दिस ट्रांसफर आरएनए ये अब यहाँ पर ये ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी ये छोड़कर चला जाएगा, और ये जो दोनों हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो दैट मीन्स अब 3 हो जाएंगे, आर्जिनिन, प्रोलीन एंड मिथ्योनिन, ये तीनों इधर ही बने हुए होंगे। और उसके बाद में जब न्यू आएगा तो क्या होगा, ये वाला जम करके चारों के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहीं पर एक बार और आप ऐड कर लोगे इधर आर्जिनिन, ये यहाँ पर आर्जिनिन, यहाँ पर फिर और आ जाएगा कोई फिनाइल एनालिन जो भी आ रहा है। दैट मीन्स ये जो चेन है वो ग्रो यहाँ पर करेगी पी साइड पे, दैट्स वाई यू कॉल देम पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हम इसीलिए पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। एंड विद द ट्रांसफर आरएनए जो कॉम्प्लेक्सेस ये बनते जा रहे हैं, 2 हैं तो डाईपेप्टाइड बोलेंगे, 3 हैं तो ट्राईपेप्टाइड बोल रहे हैं। तो ए साइट पर जैसे पुल कर दें, तो विद दिस ट्रांसफर आरएनए डाईपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एट ए साइट इज पुल्ड टू पी साइट, ये जो ए साइट पे है कहाँ आ जाएंगे, पुल्ड करके पी साइट पर आ जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स एनर्जी। ये जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है ट्रांसफर आरएनए का, जो अपने पेप्टाइड्स को लेकर के इधर शिफ्ट हुआ, पी साइट पे शिफ्ट हुआ ए से, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से वर्ड ट्रांसलोकेशन। तो दिस ट्रांसलोकेशन स्टेप ऑल्सो रिक्वायर्स जीटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको चाहिए होता है जीटीपी, तो जीटीपी हाइड्रोलाइज करता है एंड गिव एनर्जी टू इट। तो इस तरह से ग्रेजुअली एक एक करके आते जाते हैं, एंड ये चेन जो है वो यहाँ पर ग्रो करती चली जाती है, एज आई शोन यू। ये यहाँ पर ये जो सब अमीनो एसिड आएगा इधर आते जा रहे हैं, ये लगते जा रहे हैं, और ये चेन ग्रो करती जा रही है। जब तक ये यहाँ पर कब तक ये चेन ग्रो करेगी, एज आई टोल्ड यू दैट इन दिस सेक्शन यू कैन सी दैट ये जो मैसेंजर आरएनए है इस पर ये राइबोसोम मूव करता जा रहा है। अब इसके पास भी देखो, राइबोसोम के पास इफ़ यू सी, इसके पास भी अपना जो आने वाला ट्रांसफर आरएनए है, दीज आर ट्रांसफर आरएनए, तो इनके पास भी देखो ये अपने एंटीकोडॉन्स हैं, सी ए एंटीकोडॉन्स हैं, ये मैच कर गया मैसेंजर आरएनए के साथ, एक के साथ यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्होंने बना दी। तो ऐसे करके ये बनते चले जाते हैं लाइक दैट। और ये रीड करते करते ये मूव कर रहा है राइबोसोम आरएनए, अभी इधर आ जाएगा,
राइबोसोम भी इधर आ जाएगा। एंड एज सुन एज इट रीचेस टू द एंड, दैट मीन्स अब एंड पॉइंट आप कैसे डिटरमिन करोगे कि कब तक बनना था। तो यू कैन से दैट एक स्टेप्स के अंदर इसको मैं बताऊंगी आपको, चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि चलते चलते जब यहाँ पर आपको 3 स्टॉप कोडॉन्स मिल जाएंगे इस मैसेंजर आरएनए पर, वेन एवर राइबोसोम जो कि मूव कर रहा है लाइक दैट, ये यही इसी राइबोसोम को मैं शॉर्ट में बना रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ये ऐसे मूव कर रहा है इधर की तरफ को। तो जैसे ही इसको मिलेंगे 3 आपके नॉन सेंस कोडॉन AUG, UAA एंड UGA, जैसे इसको यहाँ पर मिलते हैं इट विल स्टॉप। तो दैट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज सिग्नल्ड बाई वन ऑफ द 3 टर्मिनल ट्रिपलेट कोडॉन्स इन द मैसेंजर आरएनए। कोई भी इनमें से मिल जाए 3 टर्मिनल कोडॉन्स, एक्चुअली ये साथ ही लगे होते हैं, UAG, UAA, UGA, तो कोई भी आ जाएंगे तो दे ऑल्सो इज, दैट्स वाई कॉल देम स्टॉप कोडॉन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन द टर्मिनल कोडॉन इमीडिएटली follows the last amino acid codon, and after this polypeptide chain transfer RNA, messenger RNA released, the subunits of ribosomes are also get dissociated, क्योंकि जैसे ये यहाँ पर आए और ब्रेक हो जाएगा सारा कुछ। क्या क्या ब्रेक हो जाएगा, ये जो आपके राइबोसोम्स थे इनके यूनिट्स सेपरेट हो जाएंगे, 30S 70S ये सेपरेट हो जाएंगे, आपके मैसेंजर आरएनए अपना अलग निकल के आ जाएगा। ठीक है, इफ़ आई चेंज द कलर, सपोज दिस इज़ मैसेंजर आरएनए, ये भी रिमूव हो जाएगा, और आपका ट्रांसफ़र आरएनए वो भी अपना अलग चला जाएगा सेल के अंदर जहाँ से आए थे, जहाँ से आए थे, बिकॉज दे आर असेंबल फॉर द कॉज, दे असेंबल फॉर अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सब कुछ हो रहा था। तो प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस वे इट स्टॉप्स, एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैसेंजर आरएनए ऑल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंसेस। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है स्टूडेंट्स, ये वाला जो बना हुआ है, तो इन पे कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंसेस, लाइक ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये सीक्वेंसेस मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो ट्रांसलेशनल यूनिट इन मैसेंजर आरएनए हैव सर्टेन and sequences, additional sequences that are not translated and are referred as UTR। आप इनको कहते हो अनट्रांसलेटेड रीजन। ये एडिशनल होते हैं, काम के नहीं होते, पर इसमें लगे होते हैं। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे अगर, तो कहीं भी किसी भी एरिया में लगे, मगर वो कोड नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वो ट्रांसलेशन नहीं बन रहा, मीन्स उनसे प्रोटीन नहीं फॉर्म हो रहा, अमाइनो एसिड नहीं बन रहा, दे आर नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। एज आई टोल्ड यू, UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड 3' एंड, दोनों तरफ हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इस तरफ भी 5' एंड की तरफ भी हो सकते हैं। बेसिकली 5' एंड की तरफ बिफोर स्टार्ट कोडॉन होते हैं, और 3' एंड की तरफ ही आफ्टर स्टॉप कोडॉन होते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। आप सोचोगे कि जब ये काम ही नहीं करते तो हैं क्यों, बट इट इज़ इसेंशियल फॉर द इफ़िशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो सके, इसलिए ये ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, and these are the various diagram, and this is the structure of transfer RNA. Why I just click the picture over here, so that you can understand now complete thing about the transfer RNA, because this is the carrier. Why we called it adapter molecule, हमने पहले पढ़ा था ना, because it performs so many functions। तो ट्रांसफर आरएनए इसका काम क्या है बेसिकली, नाउ यू अंडरस्टैंड, टू कैरी द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स को ले जाना कहाँ तक, राइबोसोम तक, सो दैट प्रोसेस चल सके मैसेंजर आरएनए तक। तो दिस इज एंजाइम साइड, क्योंकि यू नो दैट वी नीड कैटालिस्ट ऑल्सो, हमें कैटालिस्ट भी चाहिए होता है इस प्रोसेस के अंदर। अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम आपने पढ़ा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जब पेप्टाइड चेन ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफ़र होती है तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी चाहिए होता है एंजाइम यहाँ पर। तो दैट्स वाई ये यहाँ पर एंजाइम को बाइंड करके अपने साथ ले जा रहा है। इधर ये एंटी राइबोसोमल साइट है, तो राइबोसोम के साथ कर रहा है बाइंड। इधर ये इसका जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन ट्रांसफ़र आरएनए के पास होता है, तो ये एंटी कोडॉन भी कैरी कर रहा है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को बाइंड करके भी ला रहा है। तो इतने सारे काम कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज ट्रांसफ़र आरएनए, ये आ रहा है, तो आप सोचो इसी को इमेजिन करो कि दिस इज़ दिस, यही चीज़ है ये। तो इतनी सारी चीज़ों को कैरी करके ला रहा है, और राइबोसोम इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही छोटे यूनिट के साथ में आपका मैसेंजर आरएनए मिलता है, वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। You need little more concentration to understand this topic, students, but it is very much important, and very small, okay, but very short question is also asked in the examination many times I have seen,
and you also go through the various previous year question paper, you will get the UTR. Suppose they ask that what is the UTR, and only they can ask only the explain the initiation step or explain the termination steps, what are the stop codons. And suppose sometimes they ask the amino acids, they give you the codon like UUU, and they ask that for which amino acid this codes. तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, जाइम्स के नेम्स भी आ सकते हैं, तो यू स्टडी इट थ्रू योर स्टडी विद योर sorry from your NCERT book, and I will also try to provide you notes in this topic. So this is all for today. Thank you.